ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ, ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਐ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਐ। ਆਨ ਦਿਨ ਸੋਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਐ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋਵਡ ਭਾਗੇ ਪਾਏ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੇ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਚ ਸਾਖੀ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁਖ ਨਾਸਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਖੋਏ ਪਾਪ
ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੁਆਓ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਲੋਚ ਹਮਾਰੇ। ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅੰਗ ਨੰਬਰ 621 ਅਤੇ 622 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੇ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਹੈ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਖਣ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਮਨ ਦੇ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲੋਚਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਚਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਨੇ।
जे गुर पूरा शब्द वरत्या है, इनका मतलब ये कि गुरु अधूरे उदों भी सन और अज दे बहुते ने अपने आप दे विच बन के बैठे ने। और केवल ये नहीं कि किसी होर मत की गल करिए, साडे विच भी बड़े ने भावें अपने आप नूं सीधे तौर पर ना कहण गुरु, ना अखाउण सीधे तौर पर, पर किते ना किते गुरु दे शरीक जरूर बने हुंदे ने। और देखो जो आप गुरु ग्रंथ साहिब को आइए तो सब तो पहलो कर्म सिख का की है, हाथ जोड़ने मत्था टेकना। और जिहड़ा देहधारी कोल जांदा सब तो पहलो उत्थे की करदा है जी, बाबे कोल गया तो की कीता, हाथ उत्थे भी जोड़े, मत्था बाबे नूं भी टेकिया, इतों तक तो काम पूरा कर लिया ना, पूरी शरीका पूरा किया। और असी उस तरह करते भी गए। खैर गुरु देहधारी नहीं, गुरु अधूरा नहीं, गुरु कोई शरीर नहीं। और धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहले ही जामे में समझा दिता सी, भावें 10वें पातशाह ने तो हुक्म किया कि अज तो सिखां नूं हुक्म है गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनना है, तुहाडा गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी होएगा। पर यह पावन बचन धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने पहले जामे च कह दिते सी। जदों सिद्ध पुछदे ने कि तुहाडा गुरु कौन है, कौन गुरु किसका तू चेला। और सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह कहते हैं भाई गुरु जिहड़ा है ना देहधारी नहीं हो सकता, पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि जे देह करके गुरु बनांगे देह तो खत्म है, अज नहीं तो कल। साडा गुरु वो है जिहड़ा ना जमदा है, ना मरदा है, ना आउंदा है, ना जांदा है। और गुरु साहब जी ने कृपा करके समझाया, कहते शब्द गुरु सुरत धुन चेला। और इनका मतलब बिल्कुल सीधा सी, जे गुरु नहीं मरदा तो गुरु का सिख भी नहीं मरदा, क्योंकि सिख जिहड़ा है ना वो शरीर है तो ना ही गुरु शरीर है, ना सुरत किते जाती तो ना गुरु आउंदा जाता है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, पूरा गुरु वो है। और सवाल फिर उठता कि हजूरे भी होंदे ने, उदों भी सन अज भी ने। और गुरु साहब ने पावन बचन किया है कि जिन्हां दा गुरु ही अधूरा होवे, गुरु नूं आप ही ज्ञान ना होवे, अपने आप दे विच बनया बैठा होवे गुरु, तो कदे विचार करके देखो सिखो, फिर उनके चेले जां उनके बने हुए सिख उन्होंने अकल कितों आ जाएगी, उन्होंने सीधा रास्ता कितों मिल जाएगा। कि गुरु जिन्ना का अंधला वो अंधे कर्म करेण, ते अंधे कर्म की करते हैं जी, गुरु अन्ना कर्म भी अन्ने, भाव के समझ कोई नहीं करना की ते करना की नहीं, तो वो अन्ने कर्म किहड़े ने। फिर वो गुरु के भाणे विच नहीं अपने भाणे च चलते हैं। देखो घर विच पुत्र नहीं, धी नहीं, दुध की घाट है, रुपये पैसे की कमी है तो रब का भाणा। पर जे बाबे ने कहा कि ये शब्द इन्ने वारी पढ़ो तुहाडे घर विच पुत्र हो जाएगा, मैं अरदास कर दी, फिर वो भाणा उत्थे कदे वेखो कि गुरु का है कि उस बाबे का है। तो जे बाबे का भाणा है तो सतगुरु कहते हैं वो अन्ना कर्म है। गुरु जिन्ना का अंधला वो अंधे कर्म करेण, ते किवें दे करदे ने, कहंदे भाणे चलन अपने, नहीं तो झूठो झूठ बोलेण, क्योंकि बोलते झूठ ने होना वो ये जो रब नूं पाउणा है, होना वो ये जो गुरु ने करना है। और इवें दे जिहड़े आप ज्ञान तो अन्ने ने, गुरु साहब ने नाल कृपा करके ये भी समझाई कि देखो उन्होंने पिछे लगते भी उन्हें जिन्हों को बिल्कुल ही अकल कोई नहीं, अकल वाली ज्ञान वाली अखा बिल्कुल ही नहीं। अन्ने के पिछे तो ही लगेगा जोड़ा आप अन्ना है। अन्ने के राहे दसिए अंधा होए सो जाए। पर नाल कृपा करते ने जिन्हों को गुरमत है, जिन्हों को ज्ञान है, वो अन्ने गुरु के पिछे कदे लगते नहीं, उनके दसे हुए राह कित्थे चलना है। कहते होए सुजाखा नानका सोखो उजड़ जाए। जिन्हों गुरु ने सुजाखा कर दिता, ज्ञान बख्श दिता, वो कित्थे जाता है, अंधे के कहने के पिछे कित्थे लगता है। हुण सतगुरु जी ने सब तो पहली बख्शिश जिहड़ी कीती गुर
पूरा है। ये जिहड़ी किरपा है पूरे गुरु ने की, तो पूरा गुरु ही किरपा कर सकता है। और दूसरी बेनती है कि किरपा है कि भावें धन गुरु अमरदास महाराज जी के पावन बचन पढ़ते रोज ही हाँ, पर जे विचार न करिए फिर तो पढ़ना ही बन जाता है, फिर तो पढ़ी जाइए तो सुनी जाइए। क्योंकि सतगुरु जी ने पावन बचन कहे ने, भाई सतगुरु नूं सब को वेखदा जिता जगत संसार। और ये वेखना ये पढ़ना जी, पढ़ी चलो वेखी चलो, सारा संसार वेख रहा है। पर सतगुरु जी कहते ने तिचर मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे विचार। और कल्ले शब्द के विचार का मतलब ये नहीं कि अर्थ समझ ले, अर्थ करके सुना दिते, अर्थ सुन ले। विचार का मतलब है कि अपने मन के नाल विचार करनी है कि शब्द के अर्थ समझ लग गए। गुरु साहब जी की कहते हैं हुण विचार तो करनी है कि गुरु की कहते ने तो असी की करने हैं। बस विचार तो ही है ना। तो जे विचार नहीं तो फिर सतगुरु जी कहते ने बस सारा संसार वेख रहा, फिर तो भावें आना जाना लग्या रहे। सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त न होवे जिचर शब्द न करे विचार। और जे सतगुरु जी ने नाल ही कृपा की, विचार करके जे प्रतीत नहीं आई, भरोसा नहीं आया, कहते जे सतगुरु की प्रतीत न आईयां भावें 100 गेड़ा आवो जाओ, फिर भावें जिन्ने मर्जी गेड़े मारो फिर गेड़ा ही है। हुण असल में कृपा है कि ये धन गुरु अमरदास जी ने आनंद साहिब दे विच सानू समझाया, और रोज़ ही समझाते हैं। साडा तो नेम है उन्होंने पढ़ के समझना भी है, उस कृपा को असीं लैना भी है। वो कृपा है कि देखो एक बेनती होर करदे, कृपा घर में धी पुत्र हो जाना, नौकरी मिल जानी, गड्डी मिल जानी, घर मिल जाना, इनू असीं कृपा कह सकते हैं। पर जे कृपा दे अर्थ सिर्फ यही करांगे कि जे मिलिया तो तां ही कृपा है, तो फिर इहदा मतलब सानू कृपा की समझ आई नहीं। गुरु साहब जी तो उत्थे भी कहते ने जे देह दुख लाइए, इस देह नूं दुख तो ला देवे, दुख भी ऐसे ला देवे जिनका इलाज भी कोई ना होवे, दुनिया भर दे दुख ला दे। गुरु साहब तो उन्होंने भी कृपा कहते हैं कि तेरी कृपा है। क्योंकि जे कृपा समझांगे, कृपा का असल विच अर्थ भाव अर्थ है उनका पाना। तो गुरु ने कृपा की बस ये समझा दिता कि भावें दुख मिले तो भावें सुख मिले, ये जीवन के दो पहलू ने, आने बार बार ने, दो भी आने ने। बस उनकी रजा दे विच रह जे गुरु ने समझाया, ये गुरु ने ज्ञान दे दिता। और वो सतगुरु का पावन बचन है जिहड़ा आपां पढ़दे हां, आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया। पहलों सानू आनंद की समझ भी नहीं आई, क्योंकि आनंद असीं रुपये पैसे नूं समझिया। धन गुरु अमरदास जी जो गुरु नहीं बने, कहते तो भी होने ने साडे कोल बड़ा आनंद, क्योंकि रुपया पैसा भी सी, जमीन भी सी, कारोबार भी सी। जे उस नज़र नाल देखिए कि पिंड दे विच, इलाके दे विच उन्हां दा इज्जत मान भी बड़ा सी। जे इहनूं आनंद कहीए तो आनंद लोग कहंदे ने, और धन गुरु अमरदास जी कहते सारे कहते हैं। पर आनंद की समझ उदों लगी जो गुरु मिलिया, जो गुरु पूरे ने कृपा की। आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया, जाणिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया। और असीं गुरु तो पुछना कृपा की है, किवें कृपा की जी। कहते कर कृपा किल विख कट्टे, गुरु ने कृपा करके अंदर दे पाप कट दिते, किल विख पाप। पर सतगुरु जी कृपा है कि कृपा हुंदी किवें है। कहते कर कृपा किल विख कट्टे, ज्ञान अंजन सारिया, बस आ कृपा है। गुरु ने इन्हां अखां दे विच ज्ञान का सुरमा पा दिता, अंदर दी अखां कह लिए दे दित्तियां। बस गुरु का बख्शिया होया ज्ञान ही गुरु की कृपा है। और कृपा फिर जो ज्ञान आ जाए, कृपा अगे लैंदा किवें है गुरु का सिख।
कहते अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, ये कृपा है। समझ आ गई अंदरों मोह टुटन का भाव ये नहीं कि घर परिवार नाल मोह करते ही नहीं, अंदरों मोह टुट गया, पकड़ नहीं रही। हुण प्यार उन्ना ही जिन्ना घर परिवार दे नाल है उन्ना ही गुआंढी नाल है, क्योंकि हुण गुरु ने ज्ञान का सुरमा पा दिता कि इबै बीठल उबै बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, जे बीठल तो बिना कोई है ही नहीं, फिर ईरखा किंदे नाल करा, फिर जेब किंदे कट्टा, फिर लुट्टा किनू ते माड़ा किनू बोला। कर किरपा किलवे कट्टे ज्ञान अंजन सारिया, कहते अंदरों जिनका मोह टुटा, मोह टुटन तो भावे मोह सारे नाल इक्को जा हो गया। फिर कहते अंदरों जिनका मोह टूटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, उन्हां दा शब्द, उन्हां दी जिहड़ी बोल बाणी है, शब्द अर्थ बोल, गुरु ने कृपा ये की कि उन्हां दा बोल बाणी भी सवार दी। और बाबा फरीद जी ने पावन बचन कहे ने, जदों गुरु ये कृपा करता है फिर अवस्था बनती है निवण सो अखर खवण गुण, जिहबा मणिया मंत जदों जीव तो बोलता बस मोती करते ने। हुण ये असल विच गुरु की कृपा है। सतगुरु जी कहते ने अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया, कहते कहो नानक यह आनंद है। आनंद गुरु ते जाने, ये आनंद असल विच समझ उदों लगी जदों गुरु मिलिया। गुर पूरा कृपा धारे, प्रभु पूरे लोच हमारे, कर इशनान गृह आए। हुण इशनान कित्थे कीता ते घर किहड़े विच आ गए। असल विच भावें संप्रदाय महापुरखा ने अपने हिसाब नाल एक उठाणका भी लिखी कि गुरु साहब जी जदों बडाली तो धन गुरु अर्जन देव जी अमृतसर घर विच आए तो उदों उन्होंने अमृत सरोवर विच इशनान किया। पर गुरु दे बाणी कदे भी एक समय ते एक वेले दी नहीं, ये जुगो जुग अटल है। असल विच धन गुरु अर्जन देव जी कहते ने अंदर इशनान किया, गुरु जी ने कृपा जो कर दी। अंदर आत्मा दे विच जिहड़ी विचार कीती असल विच उही इशनान है। कर इशनान गृह आए, अपने निज घर दे विच आके टिक गए। ये जिहड़ा मनवा भजदा सी निज घर विच टिक गया। और गुरु साहब जी ने इसे इशनान नूं कहा है कि मन रे थिर रहो। इत्थे गुरु साहब ने शब्द वरत दिते गृह आए, उत्थे क्या कि टिकिया रहो। कित्थे टिकिया रहो, बंदा टिक ते घर विच सकदा है ना, कि घर विच टिक के बह जाया कर। मन रे थिर रहो, मत कत जाही जियो बाहर ना जाई। क्यों जी? कहते सब किश घर में बाहर नहीं, क्योंकि जो कुछ तू प्राप्ति करनी तेरे हिरदे घर दे विच अंदर टिक। और गुरु साहब जी अज कृपा करके समझाते ने इशनान करके अंदर दा आत्मिक इशनान करके अंदर घर दे विच मनवा टिक गया, निज घर विच आ गया। तो जदों कोई निज घर विच टिकदा है आनंद मंगल सुख पाए, उन्होंने आनंद भी मिलता है, खुशियां भी मिलदियां ने, सुख भी मिलते हैं। और ये आनंद मंगल ते सुख जिहड़े ने बाहरी तौर पर नहीं, जिन्हों दुनिया के लोग कहते हैं आनंद आनंद सब कुका है, वो आनंद नहीं कि प्रशादा बड़ा वधिया छकिया आनंद आ गया, वो आनंद नहीं। ये आनंद वो है जिहड़ा बाबा कबीर जी कहते हैं कि कबीर चरण कमल की मौज में है रहो अंत्यारे याद। इत्थे वो मौज है, वो आनंद है जदों आत्मक घर दे विच आके टिक गया मन। फिर आनंद दा अर्थ खुशियां, मंगल दा अर्थ खुशियां, सुख ते सुख है। हुण तीन शब्द वरते ने, भावें इन्हां दे परायवाची शब्द जिन्ने मर्जी अगे बना लो, पर अर्थ एक ही है। आनंद भी मिल गया, मंगल भी आ गया, सुख भी आ गए। संतो राम नाम निस्तरिया। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी रहाउ दी पंक्ति बख्शिश करते हैं कि हे संत जनो, इत्थे संतो
चोड़िया नहीं किया, चोड़े ने तो कह देंगे संतो गुरु के सिखो सुनने वाले हो, संतो राम नाम निस्तरिय। भाई जे तुसी भी चाहते ये आनंद मंगल दे सुख आए, फिर उस रमे हुए राम का नाम जपो, निस्तरिय पार उतारा हो जाता है, पार उतारा हो जाएगा। नाम जप के तर जाइदा है। फिर सतगुरु जी जपना किवें है, जपना किवें है? चौंकड़ा मार के इशनान करन तो बाद, क्योंकि सवाल साडे खत्म ही नहीं होंदे। पर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी कहते हैं भाई भाना कोई भी नहीं, उठत बैठत हर हर ध्याइए। तू उठ के खलो के जप लै, बह के जप लै। और गुरु साहब ने तो कृपा इत्थों भी की, उठत बैठत सोवत जागत। तू सुत्या पे जप लै, तू जागदा होया जप लै, लम्मे पै के जप लै, पुट्ठा हो के जप लै, सीधा हो के जप लै, पर जप तो सही। जिवें मर्जी जप, कहते उठत बैठत हर हर ध्याइए। ते ध्याउणा है कि जी, कहते अन दिन सुकृत करिए। बस जे तेरी किरत चंगी है, सुकिरत चंगी, हर रोज़ की किरत तेरी चंगी है, इहदा मतलब तू त्यार रहा है, जप रहा है। और जपण वाला माड़ी किरत कदे कर सकता ही नहीं। रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड भागे पाए। संत असल में एक मार्ग है, संत कोई चोला नहीं, संत कोई शरीर नहीं। तो ये संत का मार्ग मिलता किसी विरले नूं है। और इस नूं मार्ग पाई गुरदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोग भावें धर्म कहते हैं, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिथे समझाते हैं, भाई गुरदास जी कहते हैं भाई इस विच धर्म नहीं। मारे सिक्का जगत में नानक निर्मल पंथ चलाया, ये निर्मल राह है, निर्मल मार्ग है। तो इस निर्मल मार्ग के अगे धर्म किहड़े ने? गुरु साहब ने तो सानू धर्म समझाए ने। हुण देखो फिर ये धर्म नूं जरूर विचार करना कि धर्म गुरु साहब ने समझाया नहीं, धर्म समझाए ने। तो धर्म के जदों अखरी अर्थ करांगे, धन गुरु नानक साहब जी कहते हैं ये धर्म का मतलब है फर्ज। कि बंदे दे अपने प्रति फर्ज की ने, बच्चों प्रति, घर प्रति, आंढे गुआढ़ी समाज प्रति फर्ज की ने। गुरु साहब ने सानू सारे फर्ज समझा दिते। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी ने पावन बचन कहे ने कि लोगों ने आपो अपने धर्म मिथ ले। फिर बेनती करा धर्म का अर्थ फर्ज कि जोग शब्दन, ज्ञान शब्दन, वेद शब्दन, ब्राह्मण है। उन्होंने आपो अपने धर्म मिथे कि जोगी कहते हैं असीं ज्ञान इकट्ठा करना, और किता भी बथेरा। पर यह गल वखरी कि उस ज्ञान नूं जीवन में उन्होंने लियांदा नहीं, ज्ञान के मुताबिक चले नहीं। उन्होंने अपना धर्म मिथ लिया, अपना फर्ज उन्हें समझा असीं ज्ञान इकट्ठा करना है। जोगी ज्ञान इकट्ठा करता है, ब्राह्मण ने धर्म अपना बना लिया, फर्ज मिथ लिया कि असीं सिर्फ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने ते पढ़ाने ने। खत्री शब्दन शूद्र शब्दन प्राकृत है। खत्री शब्दन सूर शब्दन। हुण खत्री का धर्म उन्होंने बना दिता सूरबीरता वाला कि मरना ते मारना। शूद्र का धर्म में दिता फर्ज है ना कि तू बाकियों की सेवा करनी है। ये कह ले कि बाकियों की नौकरी करनी है। तू धर्म स्थान पर नहीं जाना, तू कोई धर्म का कर्म नहीं करना। तेरा धर्म, तेरा फर्ज यही है कि तू इन्हों की सेवा कर, इन्हों की नौकरी कर। पर सतगुरु जी कहते हैं असल में धर्म है कि कहते सर्व शब्दन एक शब्दन, शब्दन शब्दन का अर्थ इत्थे धर्म है और धर्म का अर्थ फर्ज है। कहते सारे धर्मों के विचों श्रेष्ठ धर्म एक ही है। सर्व शब्दन एक शब्दन, धर्म दो चार नहीं, धर्म एक ही है। वो है इंसानियत का फर्ज। और इस फर्ज तो अगे बहुत सारे फर्ज निकलते हैं। कहते सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने भयो, धर्म एक ही है पाई जे कोई समझ लवे। और सतगुरु जी कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ, ਬਸ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਪੌੜੀ ਵਰਤਿਆ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ। ਔਰ ਜੇ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ, ਧਰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਪੌੜੀ। ਅਤੇ ਪੌੜੀ ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੇ ਦੇ ਟੀਸੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਵੇ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਵਿਡ ਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਫਰਜ਼, ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੇ, ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਨਸ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਕਲ ਰਾਖੀ। ਕਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਸੱਤਿਆ, ਤਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਤਿਆ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਨਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਖੀ। ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਖੀ, ਸਾਖੀ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਵਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਭਏ ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਗਨ ਬਿਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗੜ ਬਿਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਬਿਗੜ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਨਸ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬਿਗੜਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ ਵੰਜੋ ਕਿਲ ਵਿਖੋ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਗੜ ਬਿਨਾਸਣ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸਣ ਉਦੋਂ ਨਸਦੇ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਜਪਦੇ ਹੋਈਏ, ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭੀੜ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜਗਤ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ
कि ये जिहड़ा खंजर है जां ये छुरा जां शस्त्र दिता ये साडा पोतरा होएगा उन्होंने देना। और माता नानकी जी ने भरोसा सी, क्योंकि दृढ़ भरोसा कहते उन्होंने ना। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी के आनंद कारज नूं 10 साल हो गए, 15-16 साल हो गए, पर बेबे नानकी ने अपनी नूं माता साडे माता गुजर कौर जी नूं कदे ये नहीं कहा कि इन्ने साल हो गए घर विच औलाद नहीं। साल 1-2 लंघे तो घर विच कलेश पैंदे ने, फिर कदे मासी ते कदे भूआ, फिर कदे आ बाबा ते कदे ओ बाबा, क्योंकि वो भरोसा दृढ़ नहीं ना। माता नानके जी इको कहते सन कि बंदगी होर कर, क्योंकि कई बार सानू लगता साडी अरदास नहीं पूरी हुंदी। अरदास पूरी हुंदी असल विच साडे तो अरदास ही नहीं हुंदी, अरदास पूरी हुंदी है। कई बार हुंदा गुरु साहब जी कहते ने सेवा थोड़ी मांगण बहुता, महल ना पावे कह तो बहुता। कई बार हुंदा कि सेवा थोड़ी मंग बहुत लिया। और माता नानके जेड़े भरोसा कि जे 16 साल हो गए, 20 भी हो गए, 25-30 साल भी लंघ गए, 32-33 साल तक, और इनू कहिए कि ये सबर दे हद इस तो अगे नहीं हो सकती। 32 साल बाद भी उलांभा नहीं दिता। इको ही गल कही कि धीए हले बंदगी विच कमी है, सेवा घट है। और जेड़े रब ने आप आना सचमुच सेवा वो ये सेवा ही सी। सब तो पहली गल कई बारी ये कि साडी सेवा घट, मंग बहुता लेने हाँ, अरदास पूरी हुंदी क्यों नहीं। और कई बारी गुरु साहब जी ये अरदास पूरी हो करते भी नहीं, तो जां कह लिए कि बहुत लेट करते हैं, अरदास पूरी नहीं हुई। और बहुते फिर छड्ड के भज जाते हैं कि मिलिया तो है कुछ नहीं। एक तरह की परख भी है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने उदाहरण भी दी है कि देखो अरदास कीती कि दुख आ गया तन के उत्ते, पर अरदास तो पूरी नहीं हुई, दुख तो होर वध गया। आर्थिक तौर पर दुख आ गया, रुपये पैसे का घाटा पै गया, कमी आ गई। अरदास की रुपया तो मिलिया नहीं, होर घाटा पैंदा जाता है। ये असल में गुरु साहब की एक कसौटी। और भाई साहब भाई गुरदास जी उदाहरण देंदे ने, देखो धोबी जिवें कपड़ा धोंदा है और साबन ला के फिर कपड़े नूं जऊं कुटदा है, जऊं कुटदा है। जे पुछिए धोबी नूं भी कपड़े नाल तेरी कोई दुश्मनी है, इन्हें कुछ विगाड़े क्यों कुटन दिया है? असल में धोबी कहेगा कि मेरी दुश्मनी कोई नहीं, मैं तो किसी का भला ही करना है। जे इनकी मैल निकलेगी किसी के पाउण के योग हो जाएगा। तो जे अरदास पूरी नहीं होंगी, इस गल को भाई साहब जी कहते सिखा चंगी तरह समझ, ये गुरु तेरे अंदर की मैल कढ़दा है। भाई साहब जी कहते जे सुनियारे को पूछिए कि इस सोने ने तेरा कुछ विगाड़िया, भी सोने को तू साड़दा है, कुठाली में पा के जऊँ अग बाली तू कढ़दा ही नहीं। और सुनियार कहता भी सोने को साड़दा नहीं, सोने को प्योर करना, सोने की मैल को साड़दा है। और इतने गुरु साहब जी कृपा करके समझाते हैं, भाई सिखा जे अरदास पूरी नहीं हुई डोली ना। ये गुरु साहब जी तेरी परख भी लै रहे हैं, तेरे अंदर के मैल को भी कढ़ते हैं। और जे साडी अरदास पूरी नहीं होंदी, अज छड्ड के किसी डेरे ते कल नूं किसी बाबे कोल। और फिर धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते हैं तेरी अरदास कदे पूरी होनी भी नहीं, क्योंकि अपने प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास न होवे। फिर तेरा विश्वास गुरु ने छेती करना भी नहीं कि अज इत्थे आए सी कल किते होर। गुरु साहब जी ने अज कृपा की, गुरु ने नाम दृढ़ करवा दिया। दृढ़ का अर्थ पक्का, फिर इन्ना पक्का कि उस सिख ने कह दिता कि जे सुख दे तो तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। फिर वो भाणे दे विच रहना आ गया कि तेरा किया मिठा लागे, जो भी तू करेगा बस उन्होंने मिठा करके मन लेना है। अज सतगुरु जी ने अखीरले पंक्ति कृपा की, बिघन विनाशन सब दुख नासन, उदों भज जाणगे सारे दुख सारे बिघन। सतगुरु नाम दृढ़ाया जदों पूरे गुरु ने नाम दृढ़ करवा दिता।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਏ ਪਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਭਏ ਸਭ ਪਾਵਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗਿਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਘਰ ਆਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਜਨ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ